तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये आपके सामने पिक्चर है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन at 5' end of coding strand promoter is present, at 3' end of coding strand terminator is present. One strand is template strand, another is coding strand. So this entire structure is transcription unit. Today we are going to discuss about this unit. The structural gene has promoter at 5' end of coding strand, that is upstream, and terminator at 3' end of coding strand, downstream. 5' 3' strand codes for nothing. ये किसी के लिए कोडिंग नहीं करता है 5' 3' स्ट्रैंड, बट मिस नॉर्मरली, लेकिन इसका नाम गलत रखा हुआ है और उसके चलते इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है. इट मीन्स which does not code for anything is called coding strand. It is used for all reference point only. अब सवाल ये उठता है कि अगर इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है और ये किसी के लिए कोडिंग करता ही नहीं है, तो फिर इसका क्या काम है, इसकी क्या यूटिलिटी है? तो इसकी यूटिलिटी है, जितने भी रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे सभी रेफरेंस पॉइंट के लिए इसी कोडिंग स्ट्रैंड को बेस माना जाएगा. तो रेफरेंस पॉइंट जैसे अभी हमने देखा यहाँ कि 5' एंड पर प्रमोटर पाया जाता है, तो ये किसका 5' एंड है? रेफरेंस पॉइंट हमको कोडिंग का लेना है, कोडिंग स्ट्रैंड का. सो दिस इज 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे प्रमोटर है. अगेन टर्मिनेटर, where terminator is present, it is present at 3' end, at downstream of which strand? It is also of coding strand. 3' end of coding strand contain terminator. So this is meaning of reference point. 3' 5' strand is called template strand. Act as template during transcription. You have already studied that only one strand of DNA act as template strand, and this template strand only can be transcribed. So 3' 5' strand is template strand which can be transcribed or which done coding. Coding is done by this template strand, I want to say. DNA dependent RNA polymerase is needed and transcription is to be take place. Then for transcription, enzyme DNA dependent RNA polymerase is required. This enzyme get attached at 5' end. Again, which 5' end? 5' end of coding strand. So RNA polymerase gets attached with 5' end of coding strand and a specific sequence of DNA called promoter. तो 5' एंड पे प्रमोटर पाया जाता है, ये आपने देखा पहले ही. तो 5' एंड पे जहाँ प्रमोटर है, प्रमोटर क्या है? स्पेसिफिक सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेस का डीएनए पर. तो इसी प्रमोटर के साथ जाके ये आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाता है. Some regulatory sequences are present upstream and downstream to promoter. आपने देखा कि डीएनए स्ट्रैंड पर स्पेसिफिक सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेस के, जिसको हम प्रमोटर कह रहे हैं, और उसी प्रमोटर से जाके आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो रहा है. इस प्रमोटर से पहले और प्रमोटर के बाद भी कुछ नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस पाए जाते हैं और ये सीक्वेंस
ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं. सो दीज सीक्वेंसेस आर कॉल्ड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस. देयर इज वन हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक DNA strand or DNA segment you can say, and this segment is having two strand. One strand is template strand. You know 3-5- strand is only template strand. So if it is not written and you have to write, then you have to search which one is 3-5-. So this strand is 3-5-, so it is template strand. And another strand is coding strand, which must be 5-3-. And these two strands are complementary to each other. So if one strand has A, another has T. Similarly, if it is having T, another complementary would have A. So these two strands are complementary. Now question arises, what is gene? Gene means it is functional unit of inheritance. DNA sequence coding for RNA. DNA का वो सीक्वेंस जो RNA के लिए कोड करता हो, या RNA में it may be rRNA और tRNA is also called gene. तो एक तो कह रहा है फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को हम जीन कहते हैं, दूसरी तरफ कह रहा है कि डीएनए का वो सीक्वेंस जो आरआरएनए या टीआरएनए की कोडिंग करता है उसको भी हम जीन कहते हैं. डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड इज सिस्ट्रॉन. और डीएनए का जो सीक्वेंस किसी पॉलीपेप्टाइड की कोडिंग करता है उस सीक्वेंस को सिस्ट्रॉन कहते हैं. स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज सिस्ट्रॉन. तो स्ट्रक्चरल जीन जो पाया जा रहा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में वो एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोडिंग करता है और इसलिए वो एग्जाम्पल है सिस्ट्रॉन का. इन यूकैरियोट इट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक, while in prokaryote it is polycistronic. तो एक डीएनए सीक्वेंस एक पॉलीपेप्टाइड को बनाएगा, या प्रोकैरियोट में इट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक, तो बहुत सारे सिस्ट्रॉन पाए जाएंगे यानी बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड को कोड करने वाले अलग अलग सीक्वेंसेस होंगे प्रोकैरियोट के केस में. यूकैरियोटिक जीन इज स्प्लिट. प्रोकैरियोटिक जीन स्प्लिट जीन नहीं होता, यूकैरियोटिक जीन स्प्लिट जीन होता है. अब इस स्प्लिट जीन का क्या मतलब है? स्प्लिट exons coding or expressed sequences is interrupted by introns. अब कह रहा है कि डीएनए या जीन जो है उस जीन में दो पार्ट होंगे. एक पार्ट का नाम है एक्सोन जो कि कोडिंग करता है या एक्सप्रेस्ड होता है, यानी उससे आरएनए बनेंगे और उसी से फिर प्रोटीन बनेंगे. दूसरा पार्ट है जिसको इंट्रॉन कहते हैं और ये इंटरप्ट कर रहा है कोडिंग सीक्वेंस को. ये कोडिंग नहीं कर सकता तो एक्सप्रेस नहीं होता है इंट्रॉन वाला पोर्शन. इसका मतलब ये नॉन एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस है. कहने का मतलब ये कि एक जीन में ऑल्टरनेटिंग वे में एक्सोन और इंट्रॉन पाए जाते हैं. एक्सोन का ही सिर्फ एक्सप्रेशन होता है और इंट्रॉन का नहीं होता है. तो एक्सप्रेस्ड कोडॉन, expressed sequence is interrupted by intron, so exon is not continuous, it is splitted in different parts due to presence of introns. So this is sense of split gene. Inheritance of trait may be influenced by promoter and regulatory sequences. तो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट में बी इन्फ्लुएंस्ड, तो ट्रेट के इनहेरिटेंस के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा किसका? प्रमोटर
एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस का। रेगुलेटरी सीक्वेंसेस इज देयरफॉर कॉल्ड रेगुलेटर जीन। अब वो रेगुलेटरी सीक्वेंस जो कि इनहेरिटेंस के ट्रेट के इनहेरिटेंस को रेगुलेट करता है, रेगुलेटरी जीन कहलाएगा। is therefore called regulatory gene, but it neither code for RNA nor for any protein। तो रेगुलेटरी जीन का काम है ट्रेट के इनहेरिटेंस को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। ये ना तो कोई आरएनए के लिए कोड करता है, ना ही कोई प्रोटीन बनाता है, सिर्फ रेगुलेशन का काम है इसका। Type of RNA and process of transcription। Transcription consists of 3 steps. First is initiation, second is elongation, and third is termination. Initiation: RNA polymerase attached with sigma factor acts as initiator to start transcription। तो सिग्मा फैक्टर के साथ अगर ये अटैच आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाता है तो इनिशिएशन स्टार्ट करता है। इलोंगेशन: आरएनए पॉलीमरेज एक्ट्स एज इलोंगेशन फैक्टर। अपने आप में आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ इलोंगेशन करवा सकता है, इनिशिएशन के लिए इसको सिग्मा फैक्टर के साथ अटैच होना हुआ। तो आरएनए पॉलीमरेज एक्ट्स एज इलोंगेशन फैक्टर कॉजेज इलोंगेशन ऑफ आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए का इलोंगेशन यानी उसकी लंबाई अगर बढ़ेगी दैट इज ड्यू टू आरएनए पॉलीमरेज, और जितनी लंबाई उसकी होनी है वो अगर कंप्लीट हो गया तो उसको रुकना है ट्रांसक्रिप्शन को, तो उसके लिए टर्मिनेशन स्टेप है। When RNA polymerase gets attached with rho factor, और RNA polymerase जैसा कि बतला चुके केवल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर टर्मिनेशन करना होगा तो इसको रो फैक्टर के साथ अटैच होना होता है, अगर इनिशिएशन करना है तो सिग्मा फैक्टर के साथ अटैच होना है। इट रीचेस टू टर्मिनेटर, तो आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ अटैच होके टर्मिनेटर साइट पर पहुंचेगा और ट्रांसक्रिप्शन का एंड करवाएगा, टर्मिनेट करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन को। इसके बाद क्या होगा? न्यूली फॉर्म्ड RNA falls न्यूली फॉर्म्ड आरएनए फॉल्स, तो जैसे ही बनेगा नया नया आरएनए, नेसेंट आरएनए जिसको कहते हैं, वो टेम्पलेट से गिर जाएगा नीचे, और जैसे ही आरएनए गिरा उसको फॉलो करते हुए आरएनए पॉलीमरेज भी गिर जाएगा। इन बैक्टीरिया आरएनए डज नॉट नीड प्रोसेसिंग। बैक्टीरिया में जैसे ही आरएनए बना वो एक्टिव फॉर्म में होता है, किसी प्रोसेसिंग की उसको आवश्यकता नहीं होती। इट इज एक्टिव एज सुन एज फॉर्म्ड, तो जैसे ही बनता है ये एक्टिव फॉर्म में है, ये फंक्शन करना स्टार्ट करता है। इन बैक्टीरिया इन सेम कंपार्टमेंट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता बैक्टीरिया में, तो एक ही कंपार्टमेंट है जहाँ ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है और वहीं ट्रांसलेशन भी होता है। और दूसरा आपने देखा कि आरएनए बनते के साथ ही एक्टिव फॉर्म में होता है, इसलिए ऐसा देखा जाता है कि बैक्टीरिया के केस में ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ और दूसरी तरफ से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो दोनों साइमल्टेनियसली चलता रह सकता है।
कॉम्प्लेक्सिटी इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोकैरियोट के केस में आरएनए बनते के साथ ही एक्टिव होता है, किसी प्रोसेसिंग की उसको आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो जो नया आरएनए बना वो इनएक्टिव होता है और कुछ प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। उस प्रोसेसिंग के बाद ही वो एक्टिव और फंक्शनल हो पाता है। और भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में पाए जा रहे हैं जिसकी चर्चा भी जस्ट हम लोग करेंगे। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस has 3 types of RNA polymerase। अभी प्रोकैरियोट्स का हम लोग देख रहे थे कि एक ही RNA पॉलीमरेज होता है और वही RNA पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ के इनिशिएटर का काम करता है, वही रो फैक्टर के साथ जुड़कर टर्मिनेटर का काम करता है। सारा का सारा प्रोसेस सिंगल टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज के द्वारा ही किया जा रहा है। लेकिन यूकैरियोट में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाएंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये किसको ट्रांसक्राइब करेगा? ट्रांसक्राइब्ड आरआरएनए 20S, 18S और 5.8S वैल्यू का आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए को ये ट्रांसक्राइब करता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। दूसरा पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये किसको ट्रांसक्राइब करेगा? प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। प्रिकर्सर है मीन्स प्रायर फॉर्म है, उससे आगे चल के एमआरएनए बनने वाला है। तो प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए को ये बनाएगा द हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए को ही ये बनवाता है। तो प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए एंड एचएनआरएनए इस आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा बनाया गया। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम है ये टीआरएनए, 5S आरएनए एंड एसएनआरएनए जिसको स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं उसको बनवाने का काम करता है। तो अभी आपने देखा कि 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं और यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर क्लियर कट पाया जा रहा है। काम का बंटवारा है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कौन सा बनाएगा, आरएनए किस आरएनए को, सेकंड किसको बनाएगा, थर्ड किसको बनाएगा। ये क्लियर कट डिवीजन है, ये फिक्स है कि कौन सा किसको बनाने जा रहा है। तो एक कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई कि एक तरह का ना होके 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज का पाया जाना, डिवीजन ऑफ लेबर का पाया जाना। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी है स्प्लिसिंग। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी जस्ट जो आरएनए बना इज नॉन फंक्शनल, ये एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सोन के साथ साथ इंट्रॉन पोर्शन भी है। एक्सोन और इंट्रॉन जब तक दोनों रहेगा तब तक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में ये है और इनएक्टिव फॉर्म में है। स्प्लिसिंग किसको कहेंगे? तो स्प्लिसिंग रिमूव नॉन फंक्शनल पोर्शन। तो नॉन फंक्शनल पोर्शन इंट्रॉन के द्वारा जो बनाया गया पोर्शन था, इंट्रॉन वाला पोर्शन था, वो नॉन फंक्शनल पोर्शन है और उसको रिमूव करना ही स्प्लिसिंग कहलाता है। और बच गया कौन? जब इंट्रॉन को रिमूव कर दिए तो सारे एक्सोन्स बच गए और उस एक्सोन को आपस में प्रॉपर सीक्वेंस में अटैच करवा दिया जाता है। तो एक्सोन्स आर अटैच्ड इन डेफिनिट ऑर्डर टू फॉर्म एचएनआरएनए। तो सारे एक्सोन्स डिफिनिट ऑर्डर में अटैच होके जो आरएनए बनाए उसको हम हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए के नाम से जानते हैं। तो पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना, उसका स्प्लिसिंग हुआ और उससे हमें मिला एचएनआरएनए। इस एचएनआरएनए की भी कुछ प्रोसेसिंग होती है। एक है कैपिंग। तो एक प्रोसेसिंग है कैपिंग, अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट MGTP, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एचएनआरएनए जो मिला
उसके 5' एंड की तरफ ये अटैच हो जाएगा मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसी प्रोसेस को हम कैपिंग कहते हैं। ठीक उसी तरह HNRNA के 3' एंड की तरफ ये एडिनाइलेट रेसिड्यू अटैच हो जाता है और उसको हम टेलिंग कहते हैं। इतना सारा प्रोसेस हो जाने के बाद स्प्लिसिंग, कैपिंग, टेलिंग, तब मैच्योर mRNA या प्रोसेस्ड mRNA का निर्माण होता है। After splicing, capping and telling, processing HNRNA changes into mRNA. And now it is sent out. अब जब mRNA बन गया, ये सारा प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था, it is sent out of the nucleus to participate in transcription. और तब जब प्रोसेस्ड mRNA बन गया न्यूक्लियस के अंदर, तो इसको न्यूक्लियस से बाहर भेजा जाता है ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि अब ये mRNA के फॉर्म में है, मतलब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म में है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट शोज एंशिएंट फीचर। कह रहा है कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट एंशिएंट फीचर को शो कर रहा है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स। स्प्लिट जीन का मतलब भी वही था, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स। शोज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। कह रहा है कि इंट्रॉन का पाया जाना प्राचीनता को दर्शाता है, एंशिएंट फीचर्स को दर्शाता है। प्रोसेस ऑफ स्प्लिसिंग रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। तो कह रहा है इंट्रॉन का प्रेजेंस एंशिएंट फीचर को दिखाता है और स्प्लिसिंग दिखाता है कि आरएनए वर्ल्ड का डोमिनेंस। तो ये क्वेश्चन कभी आपसे पूछता है कि इंट्रॉन के प्रेजेंस का क्या मतलब है, क्या शो करता है, या स्प्लिसिंग से क्या मतलब है, तो डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड को शो कर रहा है स्प्लिसिंग। RNA and RNA dependent processes have acquired more importance. ये दिखा रहा है कि अभी आज के समय में these days तो कह रहा है RNA and RNA dependent process have acquired more importance these days। इन दिनों RNA और RNA dependent process का ज्यादा महत्व है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, फिर कल मिलेंगे। ओके बाय।